آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب عرب میں انسانیت ختم ہو چکی تھی، لوگ غلاموں کو حقیر سمجھتے تھے، چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور بتوں کی پوجا عام تھی، یہاں تک کہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت یہودیوں کو پتا تھا کہ بہت جلد ایک نبی آنے والا ہے جو کہ اس پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا، کیونکہ بائبل میں یہ لکھا تھا کہ احمد نام کا ایک نبی اس دنیا میں آئے گا، جو کہ آج بھی بائبل میں لکھا ہے۔ یہودی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے انتظار کرتے تھے جس طرح آج ہم امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ آخرکار 570 عیسوی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی دن کعبہ میں رکھے سارے بت خود سے ٹوٹنے لگے، اور پارسیوں کے مندر میں لگی آگ جو کہ ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی، جسے ایک بار بھی بجھنے نہیں دیا گیا، وہ بھی اچانک سے بجھ گئی، اور اسی طرح بہت سے معجزے ہوئے کیونکہ یہ کفر کے زوال کا اعلان تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت سچے اور ایماندار انسان تھے۔ عرب کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خوبیوں سے بہت امپریس تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک عزت دار عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کا کام سنبھالنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک دل اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہنچے، آپ کا اس دنیا سے دل اٹھنے لگا اور آپ اکثر شہر سے دور غار میں عبادت کرنے جاتے تھے۔ پھر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے امام علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائے، لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے، وہ سب آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو مارنے کی دھمکی تک دینے لگے۔ عرب کے لوگ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نہیں بلکہ جو بھی اسلام لاتا اسے مارتے پیٹتے اور ظلم کرتے تھے، جیسا کہ ابو سفیان اور ابو جہل، یہاں تک کہ ایک بار تو مکہ کے سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آپ کے گھر تک آ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام بچپن میں ہی یتیم ہو چکے تھے، اس لیے آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کی۔ لیکن پھر 619 عیسوی میں ایک ہی سال میں نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں وفات پا گئے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اکیلے پڑ گئے۔ عرب کے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور نبی علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی، تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت صرف 100 سے 200 لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ جہاں مکہ میں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کر رہے تھے، وہیں مدینہ میں اوس اور خزرج قبیلے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں مدینہ آنے کی دعوت دی، کیونکہ مدینہ کے لوگ یہودیوں سے بہت سالوں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ ان کا ایک نبی آنے والا ہے۔ اسی وجہ سے مدینہ کے لوگوں کو جیسے ہی یہ پتا چلا کہ مکہ میں ایک نبی آیا ہے تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا، اور آہستہ آہستہ مکہ کے سارے مسلمان مدینہ شفٹ ہو گئے۔ پھر ایک دن ابو سفیان کچھ لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے گھر آیا آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بستر پر امام علی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو مکہ کے لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ روانہ ہو چکے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے مدینہ جانے سے پہلے 3 دن غار سور میں قیام کیا تاکہ کہیں ابو سفیان کے لوگ انہیں راستے میں پکڑ نہ لیں۔ 3 دن بعد نبی علیہ السلام مدینہ روانہ ہوئے۔
और मदीना पहुंचते ही वहां के लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया, और जो मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए थे उन्हें भी अंसारे मदीना ने खूब सपोर्ट किया। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी बीवियों को तलाक देने तक के लिए तैयार हो गए ताकि ये उनसे शादी कर सके। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आपने सबसे पहले मदीना के यहूदियों के साथ एक डील की कि अगर मदीना पर कोई हमला होता है तो हम अपनी दुश्मनी भूलकर एक होकर मदीना को डिफेंड करेंगे। मदीना हिजरत करने के 2 साल बाद इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई जिसे जंगे बद्र कहा जाता है। जब मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए तो मक्का के लोगों ने मुसलमानों का सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया, तो अल्लाह ने इन्हें इजाजत दे दी कि अब वो मक्का के लोगों के काफिले लूट सकते हैं। तो मुसलमान बगैर कोई खास हथियार लिए बस कुछ तलवारों के साथ अबू सुफियान के काफिले को लूटने निकल पड़े, क्योंकि मक्का के काफिले मदीना से होकर गुजरते थे। लेकिन रास्ते में ही अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ऑप्शंस दिए कि या तो वो अबू सुफियान का काफिला लूट ले या फिर जंग होगी। उस वक्त मुसलमानों को सबसे बेहतर ऑप्शन यही लग रहा था कि अबू सुफियान का काफिला लूटा जाए, क्योंकि इससे मुसलमानों के पास माल आता, और दूसरी तरफ जंग का ऑप्शन मुसलमानों के लिए मौत को गले लगाने जैसा था, क्योंकि इनके पास सिर्फ 8 तलवारें और 2 घोड़े थे। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि अल्लाह मक्का के काफिरों को इन 300 तेरा मुसलमानों के हाथों कत्ल करके मुजज़ा जाहिर करना चाहता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऑप्शन चुना। अबू सुफियान को इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान इनका काफिला लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसने एक शख्स को मक्का भेजा मदद के लिए। जैसे ही उस शख्स ने मक्का जाकर सब कुछ बताया तो मक्का से अबू जहल 1000 लोगों का लश्कर लेकर निकल पड़ा, और अबू सुफियान भी समंदर के रास्ते से मक्का सेफली पहुंच गया। मुसलमानों ने मदीना के साउथ वेस्ट में बद्र नाम की एक जगह पर अपना पड़ाव डाला, इसी वजह से इसे जंगे बद्र कहते हैं। अगले दिन अबू जहल 1000 लोगों के साथ इस जगह पहुंचा। अब दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी थी। इसी वक्त अबू जहल की फौज में से एक उतबा नामी इंसान अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया, और उसने मुसलमान फौज को ललकारा कि कोई आकर इसका मुकाबला करे। तो मुसलमानों की फौज से 3 लोग सामने आए, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा, दूसरे हजरत उबैदा और तीसरे मेरे मौला अली, और इन तीनों ने उतबा को खत्म कर दिया। इसके बाद मुसलमानों और काफिरों के साथ जंग शुरू हुई। काफिरों को लगता था कि वो आराम से जीत जाएंगे, कहां 313 और कहां 1000, और वो भी घोड़ों और तलवारों के साथ। लेकिन अल्लाह ने इस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे, और इन फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग लड़ी और काफिरों की फौज को बुरी तरह से हराकर भगा दिया। और इसी जंग में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी मारा गया। और ये जंग मुसलमानों की नहीं बल्कि इस्लाम की बहुत बड़ी जीत थी, और इसी तरह अल्लाह ने मुसलमानों की तलवारों से काफिरों को शिकस्त दी। इस हार के बाद काफिर अब मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि मक्का के लोगों की पूरे अरब में इज्जत थी और अब सवाल इनकी इज्जत का था। तो इस बार अबू जहल की मौत के बाद अबू सुफियान 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के खिलाफ चल पड़ा, जिसमें खालिद बिन वलीद भी शामिल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग मदीना में लड़ना चाहते थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना के यहूदियों के साथ डील की थी कि अगर मदीना पर हमला हुआ तो हम मिलकर मुकाबला करेंगे, इससे मुसलमानों को एडवांटेज मिलता। लेकिन मेजॉरिटी सहाबा ने मदीना के बाहर रेगिस्तान में जंग लड़ने का फैसला किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात मान ली, और 1000 मुसलमान 3000 के मुकाबले में थे, जहां उहद पहाड़ पर मुसलमानों का अबू सुफियान के लश्कर से सामना हुआ। लेकिन इसी वक्त एक मुनाफिक अब्दुल्ला इब्ने उबई 300 लोगों के साथ ये जंग छोड़कर चला गया, जिससे मुसलमान अब सिर्फ 700 रह गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। आपने 50 तीर अंदाजों को उहद पहाड़ की बैक साइड पर खड़ा कर दिया, और इन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि यहाँ से बिल्कुल न हिलना, चाहे मुसलमानों के जिस्मों को परिंदे भी खाने लगे।
پھر جنگ شروع ہوئی اور مسلمان ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے اور کافر شہید ہونے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان 50 تیر اندازوں کو لگا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں مال غنیمت نہ ملے، تو ان 50 تیر اندازوں میں سے 35 مسلمان پہاڑ سے اتر آئے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب آگے اور پیچھے دونوں طرف ابو سفیان کا لشکر تھا اور مسلمان ان دونوں کے درمیان پھنس چکے تھے، اور اس طرح بہت سے مسلمان شہید ہونے لگے، اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دانت مبارک شہید ہو گئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو کئی صحابہ یہ سن کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر جیسے صحابی بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن صرف 12 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہے، جن میں امام علی علیہ السلام، سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی تھے۔ تو باقی بچے مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے، جسے دیکھ کر ابو سفیان پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ واپس مڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی اور باقی کچھ صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ یہ پلٹ کر حملہ نہ کر دیں، اور ان صحابہ نے بڑی بہادری دکھائی جس کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، جو کہ مسلمانوں کے آرمی چیف تھے۔ احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے آخری کوشش کی مسلمانوں کو ختم کرنے کی، اور اس نے عرب کے کئی بڑے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا تاکہ اس بار وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کر سکے۔ انہوں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا، جبکہ مسلمان ٹوٹل 3,000 تھے۔ وہیں دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ تو ایک صحابی جو کہ پرشیا کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، جن کا نام حضرت سلیمان فارسی تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ پرسیا میں ہم اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے خندق کھودتے ہیں، جس سے وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے، اور ہم ان پر تیروں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ آپشن ٹھیک لگا اور آپ نے مدینہ کے فرنٹ پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مدینہ باقی سبھی طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ تو پھر مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کر دیا۔ یہ خندق کھودنا ہی مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا، کیونکہ مدینہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور اس علاقے میں خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن پھر بھی مسلمان پوری جان لگا کر خندق کھودتے رہے۔ خندق کھودتے وقت ایک ایسا پتھر آیا جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کو جا کر یہ بتایا۔ پھر نبی علیہ السلام خود آئے اور آپ نے اس پتھر پر 3 بار ہتھوڑا مارا، جس سے وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس پتھر کو توڑتے وقت نبی علیہ السلام کو ایک روشنی دکھائی دی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ پہلی بار جب مجھے روشنی دکھائی دی تو اللہ نے مجھے روم عطا کیا، اور دوسری بار جب مجھے روشنی دکھائی دی تو اللہ نے مجھے پرشیا عطا کیا، اور تیسری بار اللہ نے مجھے یمن بھی عطا کر دیا۔ اس وقت رومن اور پرشین امپائر دنیا کی سپر پاور تھی۔ جب منافقوں نے یہ سنا تو وہ کہنے لگے، یہاں ہمارے اتنے برے حالات ہیں اور یہ رومن اور پرشین امپائر کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس سے پہلے جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا تھا، اس کے بعد اب دوبارہ پھر 10,000 کا لشکر انہیں مارنے آ رہا تھا، اور مسلمان صرف 3,000 تھے۔ جیسے ہی وہ 10,000 کا لشکر جنگ لڑنے مدینہ پہنچا تو وہ اس خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے خندق کے بالکل سامنے پڑاؤ ڈالا۔ لیکن ایک انسان ایسا تھا جس نے یہ خندق پار کر لی۔ اس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ یہ انسان ایک بہت بڑا جنگجو تھا، جس سے پورے عرب کے لوگ ڈرتے تھے، کیونکہ یہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا۔ جیسے ہی یہ خندق پار کر کے مسلمانوں کے سامنے آیا، اس نے مسلمانوں کی پوری فوج کو چیلنج دیا کہ تم تو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، تو آؤ میں تمہیں تمہاری جنت میں پہنچا دوں۔ لیکن اسے دیکھ کر 3,000 مسلمانوں میں کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سامنے آ کر اس کا مقابلہ کر سکے، سوائے ایک 27 سال کے لڑکے کے جس کا نام تھا علی۔
जैसे ही इसने मुसलमानों को ललकारा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। इसने दोबारा फिर ललकारा, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ सिवाय इमाम अली के। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। तीसरी बार जब इसने दोबारा फिर ललकारा तो नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को रवाना किया। एक तरफ अरब का मशहूर जंगजू जिसके पास सालों का जंगी एक्सपीरियंस था, और दूसरी तरफ एक 27 साल का लड़का। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम इसके सामने गए तो अमर बिन अब्दे वद ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, क्योंकि इमाम अली के वालिद अबू तालिब इसके बड़े अच्छे दोस्त थे। तो इसने इमाम अली से कहा कि मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, किसी और को भेज। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो तुझसे लड़ना चाहता हूँ। फिर इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपने हर मुखालिफ को 3 ख्वाहिशों का इजहार करने का मौका देता हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश तो ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि तुम ये जंग छोड़कर वापस चले जाओ, और तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम मेरा मुकाबला करो। इस बात पर उसे गुस्सा आया और वो तेजी से इमाम अली की तरफ हमला करने बढ़ा, तो मेरे मौला अली ने एक ही वार में इसे खत्म कर दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि ये किसी मुआजिजे से कम नहीं था। उसके बाद काफिरों ने दोबारा खंदक पार करने की हिम्मत नहीं की। फिर अल्लाह ने तेज आंधी चलाई, जिससे काफिरों के खेमे उड़ गए और इन्हें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन काफिरों ने एक नई चाल चली। उन्होंने मदीना में मौजूद यहूदियों को अपने साथ कर लिया और इनसे मदीना में दाखिल होने का रास्ता मांगा, जबकि इन यहूदियों ने मुसलमानों के साथ डील की हुई थी। फिर भी उन्होंने गद्दारी कर दी और इस तरह मुसलमान फंस गए, और अब इन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगी, क्योंकि मदीना में मुसलमानों की फैमिलीज भी थी। अब सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज की जान भी खतरे में आ चुकी थी। उसी वक्त अल्लाह ने अपना एक और मुजज़ा कर दिखाया। एक इंसान जिसका नाम नुआइम बिन मसऊद था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता। उसने अपना एक प्लान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आपने उसे इसकी इजाजत दे दी। फिर वो सीधा यहूदियों के पास गया और उनका ब्रेन वॉश किया। उसने यहूदियों से कहा कि अगर ये जंग न हुई तो मक्का के लोग तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे, फिर तुम्हारी मौत पक्की है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो इनसे ट्रस्ट के तौर पर इनके 8 सरदार मांगो। इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और उनसे कहा कि मदीना के यहूदी मोहम्मद के साथ मिले हुए हैं और वो मोहम्मद को अपना ट्रस्ट शो करने के लिए तुमसे तुम्हारे 8 सरदार मांगेंगे। तो जैसे ही यहूदियों ने इनके 8 सरदार मांगे तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इससे इनकी डील टूट गई। अब काफिर फिर से अकेले पड़ गए थे और आंधी की वजह से उन्हें काफी माली नुकसान हुआ और उनका खाना भी खत्म हो गया। फिर वो वापस चले गए। इनके जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम अपनी जर उतारने लगे। इतने में ही हजरत जिब्राइल आपके पास आए और आपसे फरमाया, या रसूलुल्लाह, अभी यहूदियों से बदला बाकी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की क़ियादत में एक फौज रवाना की और फरमाया कि असर की नमाज हम वहीं पढ़ेंगे। वहां पहुंचकर यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, हमें आपका फैसला कबूल नहीं, आप हमारे साथ जो चाहते हो वो करो, लेकिन हमारा फैसला साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हा से कराओ, क्योंकि साद बिन मुआज को वो जानते थे। तो साद बिन मुआज ने उन्हीं यहूदियों की किताब तौरात से फैसला किया, क्योंकि तौरात में गद्दारी की सजा मौत है। इस वजह से फिर हजारों यहूदियों को कत्ल कर दिया गया, सिवाय उनके बच्चों और औरतों के। आज नॉन मुस्लिम्स इस इंसिडेंट को मुसलमानों के खिलाफ यूज करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, जबकि यही कानून आज पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। खंदक की जंग में जब अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर चला गया था तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अब मुशरकीन अरब आज के बाद तुम पर हमला नहीं करेंगे, अब तुम उन पर हमला करोगे। एक रात अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब के जरिए उम्रा करने का हुक्म दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम तकरीबन 1500 सहाबा के साथ मक्का उम्रा करने के लिए चले गए। जब अरब के मुशरकीन को इसका पता चला तो उन्हें लगा कि ये हम पर हमला करने आ रहे हैं, तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को जासूसी करने भेजा।
खालिद बिन वलीद ने वापस आकर इन्हें बताया कि वो तो सिर्फ उम्रा करने आए हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि हम मक्का के सरदार हैं, हमारी इजाजत के बगैर वो उम्रा कैसे कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने मुसलमानों को उम्रा करने से रोक दिया और एक शख्स जिसका नाम उर्वा बिन मसूद था, इसे नबी अलैहिस्सलाम के पास धमकाने के लिए भेजा। उर्वा ने आकर नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके ये साथी आपको छोड़कर चले जाएंगे और अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाएं। इस बात पर सहाबा को बहुत गुस्सा आया। वो इसे दिखाना चाहते थे कि हम नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। थोड़ी देर बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम वजू करने लगे और आपके 1500 सहाबी आपके वजू का पानी भी जाया नहीं होने दे रहे थे। जब उर्वा ने ये देखा तो इसने वापस जाकर अबू सुफियान को ये सब बताया। इसने कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी भी बादशाह के साथियों को मोहम्मद के साथियों की तरह नहीं देखा। इनके साथी इनके वजू के पानी तक के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और जैसे ही मोहम्मद के मुंह से अल्फाज निकलते हैं ये उसे पूरा करने के लिए फौरन दौड़ते हैं। ये कभी भी मोहम्मद को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इनके साथ मुआहिदा कर लो। तो मुशरिकीन अरब ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ डील कर ली। इस डील में कुछ शर्तें तय हुई। पहली शर्त ये कि अगर कोई शख्स मक्का छोड़कर मदीना जाएगा तो उसे वापस करना होगा, लेकिन अगर कोई शख्स मदीना छोड़कर मक्का आएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा और मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल से उम्रा कर सकते हैं और 10 साल के लिए अब कोई जंग नहीं होगी। इस डील में सारी शर्तें मुशरिकीन के हक में थी और मुसलमानों के हक में कोई शर्त भी नहीं थी। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ये डील करने से आपको रोका, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फिर भी ये डील कर ली। लेकिन कमाल ये हुआ कि जिस शख्स ने ये मुआहिदा लिखा था इसका अपना बेटा नबी अलैहिस्सलाम के पास इस्लाम कबूल करके आ गया और आपसे कहा कि मुझे इन काफिरों के पास मत भेजें। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की लेकिन मुआहिदा हो चुका था, इसी वजह से उसे वापस भेजना पड़ा। लेकिन कुछ टाइम बाद एक शख्स मदीना आया जिसका नाम अबू बसीर था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मुआहिदे के तहत इसे भी वापस भेज दिया और मुशरिकीन इसे वापस ले गए। लेकिन इसने रास्ते में ही इनको कत्ल कर दिया और मक्का जाने की बजाय उसने मदीना के बाहर एक जगह पर पड़ाव डाल दिया। इसके बाद जो भी लोग मक्का से इस्लाम कबूल करके आते वो वापस मक्का जाने की बजाय इसी जगह रहने लगे और कुछ ही वक्त में यहाँ अच्छी खासी आबादी हो गई और ये वही जगह थी जहाँ से मक्का के काफिले गुजरते थे और मक्का की पूरी इकोनॉमी इन काफिलों पर डिपेंडेंट थी। फिर इन लोगों ने मक्का के काफिरों से बदला लेने के लिए इनके काफिले लूटने शुरू कर दिए, जिससे मक्का के काफिरों को बहुत नुकसान होने लगा और उन्होंने तंग आकर इस डील को खत्म कर दिया और नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि अब जो भी इस्लाम कबूल करके आपके पास आए तो आप उसे अपने पास ही रखें ताकि उनके काफिले बच सकें। इस तरह ये मुआहिदा जो काफिरों ने अपना फायदा सोच कर किया था वो उल्टा इन्हीं के खिलाफ हो गया। सुलह हुदैबिया के बाद अब मुसलमानों का अगला टारगेट खैबर था। ये यहूदियों का बहुत बड़ा और अमीर किला था। खैबर के यहूदियों ने कुरैश और मुसलमानों के दूसरे दुश्मनों को कई बार सपोर्ट किया था और इनके कुरैश के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस थे, इसलिए इनको हराना बहुत जरूरी था। तो नबी अलैहिस्सलाम 1600 मुसलमानों के साथ खैबर पहुंच गए, लेकिन यहूदियों को कुछ मुनाफिकों ने ये खबर पहले ही दे दी थी। वैसे भी यहूदियों को लगता था कि वो ये जंग आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि इनकी तैयारी पूरी थी और इनके पास एक जंगजू था जिसका नाम मरहब था। मरहब पूरे अरब में मशहूर था और इसके लेवल का कोई भी जंगजू पूरे अरब में नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने कई सहाबा को ये किला फतह करने भेजा, लेकिन किसी से ये किला फतह नहीं हुआ। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल मैं ये झंडा उस इंसान के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबी इस उम्मीद में थे कि ये झंडा उन्हें मिले, यहाँ तक कि हजरत उमर को तो उस रात नींद भी नहीं आई। लेकिन अगले ही दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली को बुलाओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखें दर्द में थी। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब इनकी आंखों में लगाया और इनके लिए दुआ की। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली पहले इन्हें इस्लाम की दावत देना
अगर कोई एक इंसान भी इस्लाम ले आया तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर होगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और सामने मरहब खड़ा था। इसने कहा कि मेरा नाम मरहब है और कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा और मैं शेर की तरह हमला करता हूँ। ये सुनकर मरहब आगे बढ़ा तो इमाम अली ने एक ही वार किया और इसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर सारे यहूदी कांपने लगे। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और खैबर के 900 किलो के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया। इसके बाद मुसलमानों ने हमला किया और खैबर फतह कर लिया। खैबर की जंग के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बसरा के गवर्नर की तरफ भेजा ताकि इन्हें इस्लाम की दावत दे सके, लेकिन उन्होंने न सिर्फ दावत कबूल करने से इनकार किया बल्कि इस सहाबी को कत्ल कर दिया जो कि जंग का ऐलान था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 3000 का लश्कर तैयार किया रोमन एम्पायर से जंग करने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इस फौज का सरदार ज़ैद बिन हारिसा को बनाया और फरमाया, अगर ये शहीद हो जाए तो तुम्हारा अगला सरदार इमाम अली के भाई जाफर बिन अबी तालिब होंगे, लेकिन अगर ये भी शहीद हो जाएं तो तुम्हारा अगला सरदार अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। इसके बाद मुसलमान रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग करने निकल पड़े। जैसे ही मुसलमान मूता के पहाड़ों पर पहुंचे तो सामने 1 लाख फौज इनका इंतजार कर रही थी, कहां 3000 और कहां 1 लाख। लेकिन मुसलमानों ने फिर भी इन पर हमला किया। ये जंग मूता के पहाड़ों के दरमियान लड़ी जा रही थी, इसी वजह से इसे जंगे मूता कहा जाता है। इस जंग में मुसलमानों की फौज के एक के बाद एक लीडर्स शहीद होने लगे। पहले ज़ैद बिन हारिसा, फिर जाफर बिन अबी तालिब और उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा। और नबी अलैहिस्सलाम इनसे मीलों दूर मदीना में बैठे सहाबा को ये सब बता रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ैद ने झंडा लिया और मारा गया, फिर जाफर ने झंडा लिया और मारा गया, फिर इब्ने रवाहा ने झंडा लिया और मारा गया। जब नबी अलैहिस्सलाम लोगों से ये कह रहे थे तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मुसलमानों ने इन तीनों लीडर्स की शहादत के बाद अपना अगला लीडर खालिद बिन वलीद को चुना। खालिद बिन वलीद ने एक स्ट्रेटेजी यूज की। उन्होंने मुसलमान फौज को रीऑर्गेनाइज करके आहिस्ता से पीछे हटने को कहा, जिससे रोमन एम्पायर को लगा कि ये मुसलमानों का कोई ट्रैप है और वो जंग छोड़कर वापस चले गए और इस तरह मुसलमान सेफली मदीना पहुंच गए। जंगे मूता के बाद कुरैश के एक साथी कबीले बनु बकर ने मुसलमानों के साथी कबीले बनु खुजा को कत्ल कर दिया, जिससे मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान होने वाली डील सुलह हुदैबिया टूट गई। इस माहदे में ये लिखा था कि मक्का वाले और मुसलमान 10 साल के लिए कोई जंग नहीं करेंगे, लेकिन इस कत्ल के बाद अब ये मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का से जंग करने के लिए 10,000 का लश्कर सीक्रेटली तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक इंसान ने मक्का वालों को इसकी खबर देने के लिए एक औरत के हाथ खत भेजा, जिसकी अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को खबर दे दी और नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को भेजा। इमाम अली ने इस औरत को पकड़ लिया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस औरत को माफ कर दिया। अबू सुफियान को इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान अब मक्का पर हमला करेंगे और अब मुसलमानों के पास बहुत ताकत है, जिससे अब इनकी मौत पक्की है। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बहुत मिन्नतें की कि सुलह हुदैबिया कायम रखें, लेकिन आपने इनकी बात नहीं मानी। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का पहुंचे, जिसे देखकर मक्का वालों ने सरेंडर कर दिया और इस तरह सिवाय कुछ लोगों को कत्ल किए। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का फतह कर लिया, जिसे देखकर अबू सुफियान ने भी सरेंडर कर दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने भी मक्का के लोगों को माफ कर दिया। फतह मक्का के बाद अभी भी अरब के कुछ कबीले ऐसे थे जिन्हें मुसलमानों की इस बढ़ती हुई ताकत से डर लगने लगा, जो कि ताइफ के हवाजन और सकीफ कबीले थे। तो इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हमला करने का फैसला किया। तो नबी अलैहिस्सलाम 12,000 का लश्कर लेकर इनके खिलाफ जंग करने ताइफ निकल पड़े। ताइफ में हुनैन नामी पहाड़ों के दरमियान मुसलमानों का सामना यहूदियों से हुआ।
इसी वजह से इसे जंग हुनैन कहा जाता है। इस जंग में कुछ मुसलमानों के मुंह से कुछ जुमले निकले। इन मुसलमानों ने कहा कि बद्र में हम सिर्फ 313 थे और आज हम 12,000 हैं, जिसके मुकाबले में काफिर तो हमसे बहुत कम हैं। ये जंग तो हम आराम से जीत जाएंगे। जैसे ही इनके पास ताकत आई तो ये अल्लाह को ही भूल गए। अल्लाह को इनका गुरूर पसंद नहीं आया। इसके बाद जब जंग शुरू हुई तो काफिरों ने ऐसा हमला किया कि मुसलमान झेल नहीं पाए, तो सारे मुसलमान वापस भागने लगे। सिर्फ 80 लोग नबी अलैहिस्सलाम के साथ बाकी रहे और नबी अलैहिस्सलाम अकेले काफिरों की तरफ बढ़े और कहा, बेशक मैं नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, और अबू तालिब का बेटा हूँ। और फिर आपने अपने हाथ से मिट्टी उठाई और काफिरों की तरफ फेंकी और इस तरह सारे काफिर अंधे हो गए, जिससे मुसलमान ये जंग जीत गए। इस जंग से मुसलमानों को बहुत माले गनीमत मिला। जंगे मूता के बाद जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों को सेफली मदीना ले आए, तो इस बार नबी अलैहिस्सलाम ने रोमन एम्पायर के खिलाफ दोबारा जंग करने का फैसला किया। और कुरान में इस जंग से रिलेटेड साफ तौर पर फतवा आ गया था कि जो मुसलमान इस जंग में शामिल न हुआ वो मुनाफिक डिक्लेयर हो जाएगा। ये मुसलमानों पर अब तक की सबसे बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि इस वक्त मदीना में खजूर की फसल तैयार हो चुकी थी और इसी वक्त मुसलमानों को जंग पर जाना था, जिससे इनकी फसल जाये हो जाती। और जंग भी उस वक्त की सबसे पावरफुल फौज रोमन एम्पायर से थी, जहां 1 लाख फौज इनके इंतजार में बैठी थी, जबकि मुसलमान सिर्फ 30,000 थे। और ये जो तबूक तक का सफर था, ये भी बहुत ही डिफिकल्ट सफर था। ये बहुत ही लंबा रास्ता था, जबकि कुछ मुसलमानों के पाँव में जूते भी नहीं थे। अब ये वो वक्त था जब नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे सहाबा और मुनाफिकों का पता चलना था। इस जंग में न जाने के लिए कई लोगों ने बहाने किए और वो मदीना में ही रुक गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना की हिफाजत के लिए इमाम अली से कहा कि इस जंग में तुम नहीं जाओगे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ये सुनकर रोने लगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून से है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम मदीना में ही रुक गए। जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम 30,000 का लश्कर लेकर तबूक जंग लड़ने पहुंचे, तो रोमन एम्पायर मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर भाग गई। ये अल्लाह की तरफ से एक मुजज़ा था और मुसलमानों के लिए आजमाइश थी। नबी अलैहिस्सलाम 40 दिन तक तबूक पर ठहरे रहे। वहाँ रोमन एम्पायर के आसपास के कई कबीलों ने आकर नबी अलैहिस्सलाम के साथ डील कर ली। फिर जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम तबूक से वापस लौट रहे थे, तो 14 ऐसे मुनाफिक थे जो सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो नबी अलैहिस्सलाम को शहीद कर सके। इन लोगों ने एक तंग घाटी में नबी अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया, लेकिन अमार इब्ने यासिर और हुज़ैफा बिन यमान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। इन 14 मुनाफिकों ने अपने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इन 14 मुनाफिकों के नाम बताए, और ये नबी अलैहिस्सलाम और हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान एक राज था। वही मदीना में मौजूद मुनाफिकों ने अपनी एक अलग मस्जिद बना ली, क्योंकि उन्हें लगा कि नबी अलैहिस्सलाम अब जिंदा वापस नहीं लौटेंगे और हम इस्लाम के सरदार बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम वापस आए, आपने फौरन अल्लाह के कहने पर इस मस्जिद को तोड़ दिया। इस जंग के बाद अब इस्लाम एक ग्लोबल पावर बन चुका था, लेकिन ये नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी की आखिरी जंग थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए और यहीं से इस्लाम का सबसे कंट्रोवर्शियल पीरियड शुरू हुआ।